اس کے بعد یہاں پر یہ اسٹارٹ کریں گے افیکٹ آف اسٹروکس، مطلب جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ اسٹروکس وغیرہ ہوں گے نا، تو وہاں پر آپ کو کون کون سی چیزیں جو ہے نا آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اچھا یہاں پر جو میں اس ویڈیو میں آپ کو کرواؤں گا وہ ہے آپ کا یہاں پر یہ اے سی ہے، اس کے بعد یہ ایم سی ہے، اس کے بعد یہاں پر یہ پی سی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ جو لینٹیکولوسٹرائڈ آرٹری ہے نا اس کو بھی آپ کو یہیں پہ کروا دوں گا۔ اچھا باقی جو ہے نا وہ میں آپ کو ابھی اس لیے نہیں کرواؤں گا کیونکہ اگر آپ کو میں نے یہ سارے کروا دیے تو آپ کو یہ سارے سمجھ نہیں آنے۔ اب میں ایسے کروں گا ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی نا یہاں پر جو میں نے آپ کو لاسٹ میں نہیں کروائیں وہ میں ساری کی ساری آپ کو اس ویڈیو میں کروا دوں گا۔ ابھی سب سے پہلے یہاں پر اسٹارٹ کریں گے آپ کی یہ انٹیریئر سیریبرل آرٹری، اس کے بعد آپ کی یہ مڈل سیریبرل آرٹری۔ ان کو کرنے کے لیے تھوڑا سا مجھے نا ہومنکولس کو دکھا لینے دیں، اس کے بعد پھر یہاں پر آئیں گے۔ یہ آگے یہاں پر یہ ہومنکولس۔ اب ہومنکولس ہے کیا چیز؟ یہ آپ کی ٹوپوگرافک ریپرزنٹیشن ہے آف موٹر اینڈ سینسری ایریاز ان سیریبرل کارٹیکس۔ اچھا یہاں پر جب آپ نارملی کسی پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آتا ہے ہیڈ، اس کے بعد یہ نیک، پھر یہ ٹرنک آ جائے گی، سائڈوں پہ یہ اپر لمز آ جائیں گے اور نیچے یہاں پر یہ لوور لمز۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جب آپ بات کریں گے نا یہاں پر یہ ٹوپوگرافک ریپرزنٹیشن کی جو آپ کی یہ موٹر اور سینسری ایریاز ہیں نا آپ کی یہ سیریبرل کارٹیکس کے اندر، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایسے یہاں پر یہ ہیڈ سٹارٹ ہوا، پھر یہ نیک آ گئے، پھر یہ ٹرنک آ گئے، لاسٹ پہ آپ کے یہاں پہ یہ لوور لمز آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر ہوتی ہے ڈسٹارٹیڈ اپیرنس، اور یہ ہوتی ہے از ڈیو ٹو سرٹین باڈی ریجنز بینگ مور ریچلی انرویٹڈ اینڈ تھس ہیونگ انکریز کارٹیکل ریپرزنٹیشن۔ یہاں پر ہوتی ہے آپ کی یہ ڈسٹارٹیڈ اپیرنس، اور اس میں کیا یہاں پر جو آپ کا ہوتا ہے نا یہاں پہ فار ایگزامپل آپ سٹارٹ کر رہے ہیں نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں سے آپ کا ہیڈ سٹارٹ ہوا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر جس ایریا نے کیا کرنا ہے آپ کے لوور لمب کو سپلائی دینی ہے وہ آپ کا ادھر آ جائے گا، اسی طریقے سے یہاں پر یہ ہینڈ کی آپ کی ادھر آ جائیں گے، فیس کے آپ کے سائڈ پہ آ رہے ہوں گے۔ اب اس میں جو آپ نے یاد رکھنا ہے سمپل جو میں آپ کو اب بتا رہا ہوں، آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے جب آپ بات کریں گے نا یہ لوور لمب کی، تو لوور لمب کو جہاں سے انرویشن آنی ہے اس ایریا کو بلڈ سپلائی کہاں سے جائے گی؟ آپ کی جائے گی انٹیریئر سیریبرل آرٹری سے، سمپل۔ اسی طریقے سے جب آپ بات کریں گے یہاں پر نا یہ اپر لمب اور اس کے بعد آپ کو جہاں پر یہ فیس کی، تو یہاں پر جس ایریا نے اس کو سپلائی کرنی ہے یہاں پر انرویشن دینی ہے آپ کی باڈی میں، آپ کی جس برین کے جس ایریا نے یہاں پر اپر لمب اس کے بعد یہ فیس کو سپلائی کرنی ہے، اس کو بلڈ سپلائی کہاں سے جائے گی؟ اس کو جائے گی ایم سی اے سے، سمپل۔ اب یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ بات کریں گے موٹر ہومنکولس کی اور یہاں پر یہ آپ کی سینسری ہومنکولس کی، تو یہ جو ایریا جہاں پر یہ لوور لمب کو موٹر یا پھر آپ کی یہ سینسری سپلائی جا رہی ہے اس کو بلڈ سپلائی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں پر یہ انٹیریئر سیریبرل آرٹری سے۔ اسی طریقے سے جب آپ بات کریں گے یہاں پر یہ آپ کے اپر لمب اس کے بعد یہاں پر یہ فیس کی، تو موٹر انرویشن کہاں سے جائے گی؟ مڈل سیریبرل آرٹری سے جائے گی۔ اسی طریقے سے جو سینسری انرویشن ہے وہ بھی آپ کی کہاں سے جائے گی؟ یہاں پر یہ مڈل سیریبرل آرٹری سے جائے گی۔ اب آپ کا جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر ہوگا یہ اسٹروک، اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے فار ایگزامپل اس کے اندر یہ اے سی ایس اسٹروک ہو گیا تو اس میں کیا ہوگا؟ یہاں پر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ لوور لمب سے آپ کی موٹر انرویشن اور آپ کی جو سینسری انرویشن ہے یہ آپ کی لاس ہو جائے گی، ختم ہوگی بات۔ اسی طریقے سے جب آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر ہوگا یہ ایم سی ایس اسٹروک، تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ یہاں پر یہ اپر لمب اور آپ کا جو فیس ہے اس کی طرف سے یہ موٹر انرویشن اور آپ کی جو سینسری انرویشن ہے یہ آپ کی لاس ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر دوبارہ سے چیز میں نے آپ کو جو پہلے بتا رکھی ہے وہ یہ کہ جو فیس ہوتا ہے فیس میں آپ کے ہوتے ہیں دو ایریاز، ایک آپ کا اپر فیس، اس کے بعد آپ کے یہاں پر یہ لوور فیس، اور میں نے آپ کو یہ فیشل نرو جو ہے نا نیوکلیائی کے اندر میں نے آپ کو یہ اچھے سے بتا دیا تھا، جو آپ کا نیوکلیس ہے نیوکلیس میں ہوتے ہیں دو پورشن، ایک آپ کا اپر پورشن اور آپ کے یہاں پر یہ لوور پورشن۔ جو لوور ہے نا اس کا پورشن وہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر جو لوور فیس ہے اس کو سپلائی کر رہا ہے، جو اپر پورشن ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے جو اپر فیس ہے اس کو سپلائی کر رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کی آتی ہے نا انرویشن، یہ آپ کی جو اس کی جو اپر ڈویژن ہوتی ہے نا وہاں پر ڈبل انرویشن آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ جب آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کو لیفٹ سائڈ سے اسٹروک ہوگا تو رائٹ سائڈ سے کیا ہوگا؟ یہاں پر آ رہی ہوگی بلڈ سپلائی وغیرہ، تو یہاں پر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر کیونکہ ڈوئل انرویشن ہے نا، سمپل جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ جب آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر کیونکہ یہاں پر جو اپر فیس ہے، اپر جو ڈویژن ہے نیوکلیس کی اس کو ڈوئل انرویشن آ رہی ہے، تو جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ جو آپ کے ہوگا نا یہ اپر فیس اس کی پالزی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جب آپ کا جو پیشنٹ اس کو دونوں سائڈوں سے ہو جائے گا نا یہاں پر یہ ڈیمیج، تب آپ کو اپر فیس کی پالزی نظر آئے گی، یا پھر آپ کا جو پیشنٹ جب اس کو یہاں پر یہ لوور موٹر نیورونز جو ہے اس کی اگر ہو جائے گی آپ کے وہاں پر یہ ڈیمیج وغیرہ ہو جائیں گے تب آپ کو یہ اپر فیس کی پالزی نظر آئے گی، ورنہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر جو میں آپ کو چیز سمپل بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم دیکھیں گے نا یہاں پر فیس کو، تو فیس میں یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ آپ کا ہوگا صرف اور صرف لوور فیس کی آپ کو پالزی نظر آ رہی ہوگی۔ تو سمپل یہاں پر اے سی اے کی اگر بات کریں گے تو لوور لمبس، اور اگر آپ بات کریں گے ایم سی اے کی تو فیس اور اپر لمبس۔ اچھا اسی طریقے سے آپ کی جو مڈل سیریبرل آرٹری ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ یہاں پر آپ کے فیس کو سپلائی کر رہی ہے، اور فیس میں ہم نے دیکھنے ہیں دو چیزیں، یہاں پر یہ ایک بروکا ایریا اور دوسرا یہاں پر یہ ورنکس ایریا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ورنکس ایریا پڑا ہوا کہاں پر؟ یہاں پر یہ ٹیمپورل لوب کے اندر پڑا ہوا ہے، اور ٹیمپورل لوب میں پتہ ہے آپ کو یہ جو چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، جو ہم یہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، سن کے سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے کہاں پر ہو رہی ہے؟ آپ کی جو ٹیمپورل لوب ہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ اب اس کیس میں کیا ہوگا؟ جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر یہ ورنکس ایریا کی بات کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کے ٹیمپورل لوب میں ہے، اور یہ موسٹ کامنلی آپ کا جو ہوتا ہے نا یہ لیفٹ ہیمیسفیئر وہاں پر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر یہ جو ڈومیننٹ ہوتی ہے نا ہیمیسفیئر جو رائٹ ہینڈڈ پرسن ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ یہ لیفٹ، تو یہاں پر یہ جو ورنکس ایریا یہ بھی آپ کا موسٹ کامنلی کہاں پر ملے گا؟ آپ کو یہ لیفٹ ہیمیسفیئر میں ملے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر جو ورنکس ایریا اس میں آپ کی جو ہوتی ہے نا اسپیچ کی کمپریہنشن
कोई भी चीज़ हम ये यहाँ पर ना ये सुन रहे हैं तो उसको हम ये समझ रहे हैं, तो वो आपकी किसकी वजह से होती है, आपके यहाँ पे ये वर्निक्स एरिया की वजह से होती है। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये डैमेज हो जाएगा, तो पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे ये जो चीज़ें होंगी उसको इसको समझ नहीं आ रही होगी, जो उसकी होगी ना ये, क्योंकि उसको चीज़ों की समझ नहीं आ रही होगी, तो वो मीनिंगलेस स्पीच जो है वो कर रहा होगा। सिंपल हो गया, इसके अंदर वर्निक्स एरिया हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये दूसरा ब्रोका एरिया। अब ब्रोका एरिया कहाँ पर है? ये आपके फ्रंटल लोब के अंदर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपने याद रखना कि जो पेशेंट जो है ना, जो भी चीज़ें वगैरह समझ रहा है, अगर स्पीच को समझ रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? वर्निक्स एरिया से। अगर स्पीच की प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो आपका जो ब्रोका एरिया ना, वहाँ से स्पीच की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पर ये आपका होगा ब्रोका एरिया। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये डैमेज हो जाएगा ब्रोका एरिया, वो वहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो स्पीच है उसकी ये प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी। स्पीच की कंप्रीहेंशन उसके अंदर हो रही होगी, लेकिन स्पीच उसके अंदर सही से प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी। और जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ना ये समझ होगी कि मैंने अब करना क्या है, मैंने इसका जवाब क्या देना है, लेकिन वो आपकी जो स्पीच होगी ना, उसके जो वर्ड्स वगैरह होंगे, उसको वो सही से अरेंज नहीं कर पा रहा होगा। तो यहाँ पर आपने देखना जो पेशेंट है ना, वो ये ब्रोकन स्पीच के साथ आपके पास प्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर ये ब्रोका एरिया में क्या होगा, स्पीच की प्रोडक्शन होगी, वो आपके जो वर्निक्स एरिया, यहाँ पर जो स्पीच है उसकी कंप्रीहेंशन होगी, और दोनों आपके जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है, क्योंकि यहाँ पर जो राइट हैंडेड पर्सन होते हैं उसके अंदर लेफ्ट हेमिस्फेयर आपकी डोमिनेंट होती हैं, तो यहाँ पर ये दोनों आपको जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है उसके अंदर आपको मिल रहे होंगे। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये डैमेज हो जाएगा, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो स्पीच होगी उसकी कंप्रीहेंशन नहीं होगी। जब ये डैमेज हो जाएगा तो जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये जो होगी ना स्पीच, उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसको ये चीज़ों की समझ नहीं आ रही होगी। यहाँ पर पेशेंट को चीज़ों की समझ आ रही होगी, लेकिन उसके जो वर्ड्स उसने निकालने हैं वो उसके सही से नहीं निकल रहे होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आगे ये एफेजिया। अब यहाँ पर जो एफेजिया सिंपल कि आपका हाई ऑर्डर लैंग्वेज डेफिसिट है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड या फिर प्रोड्यूस या फिर यूज़ लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली। और ये आपके कॉज बाय पैथोलॉजी इन डोमिनेट सेरेब्रल हेमिस्फीयर यूजुअली लेफ्ट। अब ये मैंने आपको इसके अंदर ये बता दिया ब्रोकाज एरिया, उसके बाद यहाँ पर ये वर्निक्स एरिया। अब यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर आपको मिलेगी डिसआर्थरिया, मोटर इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीच और मूवमेंट डेफिसिट्स वगैरह जो है यहाँ पर ये आपको डिसआर्थरिया में नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो एफेजिया, इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये ब्रोकाज एफेजिया, और ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको नज़र आएगा यहाँ पर ये एक्सप्रेसिव एफेजिया। अब यहाँ पर ये जो ब्रोका एरिया, वहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्पीच है ना उसकी हो रही है प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, जब जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये ब्रोका एरिया डैमेज हो जाएगा तो स्पीच की प्रोडक्शन नहीं होगी। पेशेंट को चीज़ों का पता होगा कि उसने वर्ड्स क्या बोलने हैं, लेकिन उसको ना ये वर्ड्स निकालने की सही से उसके ना ये वर्ड्स वगैरह सही से नहीं निकल रहे होंगे। यहाँ पर ये एक्सप्रेसिव एफेजिया होगा, उसको पता होगा कि मैंने क्या बोलना है, लेकिन वो सही से नहीं बोल पा रहा होगा। ब्रोका एरिया इन इंफीरियर फ्रंटल गायरस ऑफ ये फ्रंटल लोब associated with defective language production, a patient appear frustrated inside intact। पेशेंट को सारी चीज़ों का पता होगा, लेकिन पेशेंट आपका ना इस केस में फ्रस्ट्रेटेड होगा। मतलब जैसे पेशेंट ना थका होता है ना, कोई वर्ड उसके बड़े मुश्किल मुश्किल से निकल रहे होंगे, तो यहाँ पर पेशेंट आपका होगा फ्रस्ट्रेटेड, और इनसाइट उसको सारी होगी कि उसने क्या क्या बोलना है। अच्छा, ब्रोका इज़ इक्वल टू ब्रोकन बोका, और यहाँ पर बोका जो है ये माउथ इन स्पेनिश उसको हम कहते हैं। अब इसमें आपने याद रखना जो पेशेंट की स्पीच होगी उसको वहाँ पे ये उसकी जो स्पीच होगी ना, ये ब्रोकन फेजेज़ में हो रही होगी। इसके बाद दूसरा यहाँ पर ये वर्निक्स एफेजिया, या फिर इसके अलावा इसको कहते हैं यहाँ पर ये रिसेप्टिव एफेजिया। अब इसमें आपने याद रखना कि यहाँ पर जो वर्निक्स एरिया ना इन सुपीरियर टेम्पोरल गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब, ये आपका डैमेज होगा। अब ये आपका एसोसिएटेड है विद आवर इम्पेयर्ड लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया आपकी जो लैंग्वेज है ना उसकी कंप्रीहेंशन कहाँ पे होनी है, आपके ये वर्निक्स एरिया में होनी है। अब इस केस में क्या होगा, ये आपका जब डैमेज हो जाएगा तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये लैंग्वेज की कंप्रीहेंशन इम्पेयर हो जाएगी। अब जो पेशेंट है ना उसको जो है ना कोई भी चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा होगा, उससे कोई भी अगर आप बात करेंगे ना तो वो एम आई वर्ड्स को ना निकाल ही जा रहा होगा। यहाँ पर वर्निक्स इज अ वर्ड ऑफ सलाद एंड मेक नो सेंस। पेशेंट जो है ना वर्ड्स को निकाल ही जा रहा होगा, जिस वर्ड की ना कोई भी सेंस वगैरह नहीं बन रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसकी जो अगर बात करेंगे यहाँ पर इनसाइट की, तो पेशेंट की इनसाइट जो है यहाँ पर पेशेंट के अंदर डू नॉट हैव इनसाइट। इनसाइट कहाँ पर होगी, जहाँ पर जो पेशेंट है उसको चीज़ों का पता होगा। अब वो आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर ये ब्रोका एरिया में, यहाँ पर जो स्पीच है उसकी कंप्रीहेंशन होगी, तो इनसाइट यहाँ पर होगी इंटैक्ट। यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी स्पीच की कंप्रीहेंशन नहीं होगी, लेकिन स्पीच की प्रोडक्शन ठीक है, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसको यहाँ पर ये चीज़ों की समझ नहीं आएगी, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये इनसाइट यहाँ पर नहीं होगी। और यहाँ पर जो पेशेंट है वो क्या कर रहा होगा, वर्ड्स को एम ही बोली जा रहा होगा, उसके जो वर्ड्स हैं ये कोई भी सेंस वगैरह नहीं बना रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कंडक्शन एफेजिया, और इसमें क्या यहाँ पर ये कॉज होता है बाय डैमेज टू आर्क्यूएट फेसिकुलस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लास्ट पे ग्लोबल एफेजिया, और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रोका और जो वर्निक्स आपका है ना ये एरिया, ये दोनों के दोनों अफेक्टेड होंगे। ब्रोका एंड वर्निक्स एरिया अफेक्टेड, दोनों के दोनों अफेक्टेड होंगे। यहाँ पर ये स्पीच की कंप्रीहेंशन भी नहीं होगी पेशेंट के अंदर। उसके साथ साथ क्या होगा, जो पेशेंट है उसको अंदर वहाँ पर ना ये स्पीच की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, तो जो पेशेंट है ये आपका टोटली म्यूट होगा। तो यहाँ पर ना यहाँ पर ये ग्लोबल में क्या होगा, ये दोनों के दोनों आपके डैमेज होंगे, स्पीच की कंप्रीहेंशन भी नहीं होगी और प्रोडक्शन भी नहीं होगी। और इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है ये आपका ओपन म्यूट होगा।
और जो पेशेंट है जब आप उसको कोई भी चीज़ वगैरह बताएँगे, कोई भी मतलब कमांड वगैरह देंगे तो वो आपकी कमांड्स वगैरह जो है उसको ये फ़ॉलो नहीं कर रहा होगा। तो सिंपल हो गया यहाँ पर ये एफेज़िया भी हो गया। अब मैं एमसीए और ये जो एसीए वगैरह है ना इसको हम वहाँ पे निकाल के देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और इस केस में आपकी जो लियन है ये कहाँ पर होगी? मोटर एंड सेंसरी कॉर्टेसिस में होगी और जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो लोअर लिम्स है ना ये आपके अफेक्ट हो रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है आपके पास प्रेज़ेंट करेगा विद कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस, लोअर लिम्ब और साथ-साथ जो पेशेंट है उसके अंदर ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह आपको नज़र आ रही होगी। सिंपल आपने क्या याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये लोअर लिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये आपकी जो जिस एरिया को सप्लाई कर रही होगी वो आपकी जो लोअर लिम्ब है ना उसको इनर्वेशन दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जब इसके अंदर स्ट्रोक होगा तो जो लोअर लिम्ब है उसकी तरफ से मोटर और आपकी जो सेंसरी सप्लाई है ये आपकी सारी की सारी लॉस हो जाएगी और पेशेंट जो है आपका पैरालाइज होगा और साथ साथ जो सेंसरी लॉ उसका है ना ये सेंसेशन वगैरह ये आपकी लॉस होंगी और उसके साथ साथ क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आपको मिल रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी, अब आपका वो ब्रेन का एरिया जो आपका अपर अपर लिम्ब और आपका जो फेस है उसको इनर्वेशन दे रहा है, वहाँ से आपकी जो ब्लड सप्लाई है उसको कौन दे रहा है, यहाँ पर ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी दे रही है। अब यहाँ पर ये मोटर और सेंसरी कॉर्टेसिस जो आपकी होंगी अपर और आपके ये फेस की, अपर लिम्ब और फेस की, वो आपकी यहाँ पर ये एलियन होगी। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताया यहाँ पर ये टेम्पोरल लोब और आपके यहाँ पर ये फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब में यहाँ पर ये वर्निक्स एरिया, इसके बाद यहाँ पर ये फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया, यहाँ पर भी आपकी लियन होगी मिडल सेरेब्रल आर्टरी के केस में। अब इस केस में जो पेशेंट है उसके अंदर आपकी ये सिम्टम्स क्या मिलेंगे, यहाँ पर ये मोटर और सेंसरी कॉर्टेसिस वगैरह काम नहीं कर रही होंगी, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस मिलेगा लोअर फेस पे और आपके अपर लिम्स में। मैंने आपको ये बता दिया, आपका जो अपर फेस होता है ना, अपर फेस पे क्या होता है, यहाँ पर आ रही होती है डबल इनर्वेशन। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी जब तक आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये दोनों साइडों से आपके डैमेज नहीं होगा, या फिर आपका जो पेशेंट है जब जब तक उसके अंदर ना ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज नहीं होंगे तब तक आपका जो अपर फेस है ना इसके अंदर आपको पैरालिसिस नजर नहीं आएगी। लेकिन जो आपके होता है ना लोअर फेस पे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक इनर्वेशन आ रही होती है, तो क्या होता है जैसे ही आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर डैमेज होगा ना एक साइड, तो वहां से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर जो लोअर फेस है उसके अंदर आपको पैरालिसिस मिल रही होगी। इसके बाद एफेजिया होगा पेशेंट के अंदर अगर, तो यहाँ पर जो लियन है ये आपकी डोमिनेंट वाली साइड पे हुई है, इफ डोमिनेंट हेमिस्फीयर यूजुअली लेफ्ट। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये नॉन डोमिनेंट जो है आपकी हेमिस्फीयर वो आपकी अफेक्टेड हो रही होगी, तो उसके केस में आपको मिलेगा यहाँ पर ये हेमी निग्लेक्ट। हेमी निग्लेक्ट इफ लियन अफेक्ट्स नॉन डोमिनेंट यूजुअली राइट हेमिस्फीयर, अगर तो यहाँ पर ये नॉन डोमिनेंट वाली साइड पे जा रही है तो यहाँ पर मिलेगा हेमी निग्लेक्ट। अगर ये आपकी जो डोमिनेंट है ना हेमिस्फीयर उसकी उसकी साइड पे जा रही है तो यहाँ पर आपको मिलेगा एफेजिया। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये वर्निक्स एफेजिया इज एसोसिएटेड विद राइट सुपीरियर क्वाड्रेंट विजुअल फील्ड डिफेक्ट ड्यू टू टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट। बाद में हम देखेंगे आइज वगैरह को, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स वगैरह को भी हम देखेंगे। अभी के लिए सिंपल ये याद रख लें, फॉर एग्जांपल ये जो पेशेंट की आई है ना, तो आई में यहाँ पर ये जो अपर क्वाड्रेंट होगा ना ये सुपीरियर क्वाड्रेंट, इसमें आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये क्वाड्रेंटनोपिया जो है ये आपका हो रहा होगा, यहाँ से जो पेशेंट है ना उसको नजर नहीं आ रहा होगा। सिंपल होगा इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लेंटिकुलर स्ट्राइएट आर्टरी और यहाँ से ये स्ट्राइएट से आपका स्ट्राइटम और लेंटिकुलेट से आपने इसके अंदर याद रख लेना यहाँ पर ये इंटरनल कैप्सूल। अब यहाँ पर जो आपकी होगी ना लियन, ये आपकी कहाँ पर होगी, यहाँ पर ये आपके स्ट्राइटम या फिर ये इंटरनल कैप्सूल के अंदर होगी। और यहाँ पर आपको पता है आपकी जो इंटरनल कैप्सूल है उसमें आपके जो पोस्टीरियर लिम्ब है वहाँ से आपके जो कॉर्टिकल फाइबर्स वगैरह जा रहे हैं वो आपके पास करके जा रहे हैं। अब आपकी जो है ना ये मोटर फाइबर्स वगैरह जो जाने हैं वो आपके कहाँ से जाएंगे, मोटर आपकी जो है ना ये पोस्टीरियर लिम्ब वहाँ से जा रहे होंगे। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंटरनल कैप्सूल पे लियन होगी तो जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये फाइबर्स नीचे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस जो है ये आपको मिल रही होगी। ये आपको पता है यहाँ पर जो राइट साइड है ना, राइट साइड से आपके जो फाइबर्स हैं ये आपके जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी होगी ना अगर ये आपकी एक साइड पे होगी ना डैमेज, तो उसकी ऑपोजिट साइड पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये पैरालिसिस आपको मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद ये एब्सेंस ऑफ कॉर्टिकल साइंस होंगे यहाँ पर पेशेंट जो उसके अंदर ये निगलेक्ट या फिर उसके अलावा ये एफेजिया या फिर जो है ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स वगैरह जो है ये आपका जो पेशेंट उसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। सिंपल जो आपने इसके अंदर याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये लेंटिकुलर स्ट्राइएट आर्टरी के अंदर होगी ये आपका स्ट्रोक वगैरह होगा, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉन्ट्रालेटरल साइड जो है वहाँ पर उसको होगी पैरालिसिस। राइट साइड से आपके फाइबर्स जा रहे हैं या आपकी लेफ्ट साइड पे, जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये आपकी जो आपकी होगी ना डैमेज, ये आपकी अगर राइट साइड की होगी तो लेफ्ट साइड पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाएगी पैरालिसिस। अच्छा, ये आपका मोटर स्ट्रोक है, प्योर मोटर स्ट्रोक है। उसके बाद यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कॉमन लोकेशन ऑफ लैक्यूनार इन्फार्क्ट्स। अच्छा, ये लैक्यूनार इन्फार्क्ट्स क्या होते हैं, जो पेशेंट है जब उसके अंदर होगा ना ये स्ट्रोक, तो स्ट्रोक में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर बाद में ये होगी रिकवरी, रिजॉल्व करेगा और रिजॉल्व करने के बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये बन रहा है एक ना ये एम्प्टी स्पेस बन रही है जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये लैक्यूना, लैक्यूनाज अगर बन रहे हैं तो वो आपको हो जाएगा लैक्यूनार स्ट्रोक। अब यहाँ पर आपने याद रखना है लैक्यूनार इन्फार्क्ट्स जो है ये आपको कहाँ पर नजर आएंगे, लेंटिकुलर स्ट्राइएट आर्टरी के अंदर नजर आएंगे। और उसके बाद इसमें से ही आपने याद रखना है जो पेशेंट है जब उसके अंदर बात करेंगे ना ये आपकी ये लैक्यूनार स्ट्रोक्स की, तो ये आपको कॉमन कहाँ पर नजर आएंगे, स्ट्राइटम, उसके बाद आपके यहाँ पर ये इंटरनल कैप्सूल,
इसके अलावा आपका जो होता है ना ये थैलेमस या फिर आपके जो पोन्स वगैरह है ना, वहाँ पर भी आपके ये लैक्यूनार स्ट्रोक वगैरह आपके बन रहे होते हैं। अभी के लिए आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है कॉमन लोकेशन ऑफ लैक्यूनार इन्फार्क्ट्स कौन-सी है, यहाँ पर ये आपकी लेंटिकुलोस्टाइड आर्टरी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये ड्यू टू माइक्रो एथीरोमा एंड हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस सेकेंडरी टू एंड मैनेज हाइपरटेंशन। तो ये आपकी होगी यहाँ पर ये लेंटिकुलोस्टाइड आर्टरी। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और इसमें सिंपल आपने आपको पहले से ही पता है इसका कि जब आपको मैंने करवाया था ना सर्कल ऑफ विलियस, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, आपकी जो पीछे से जा रही थी हमारे यहाँ पे ये वर्टिब्रल आर्टरीज, ये आपकी जो है ना ये आपकी ऑक्सीपिटल लोब वहाँ से एंटर हो रही थी। अब इसमें सिंपल आपकी जो है ना ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये आपकी यहाँ पर जो ऑक्सीपिटल लोब है उसमें यहाँ पर ये लियन होगी, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है इसके अंदर स्ट्रोक आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपको पता है जो आपकी जो ऑक्सीपिटल लोब है उसमें क्या होता है, आपके जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ना ये वीएन वगैरह आ रही होती है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉन्ट्रालेटरल हेमी एनोपिया होगा विद मैक्यूलर स्पेयरिंग। अब ये आपने इसके अंदर याद रखना है, ये आपका जो होता है ना दरमियान में मैक्यूला वाला पोर्शन, मैक्यूला को दो साइडों से सप्लाई आ रही होती है, एक आपको वहाँ पर ये एमसीए कर रही होती है इसको, और दूसरी यहाँ पर ये पीसीए कर रही होती है। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर एक डैमेज हो जाएगी तो मैक्यूला की हो जाएगी स्पेयरिंग। अब इस केस में आपको वहाँ पर नजर आएगी ये मैक्यूला स्पेयरिंग। इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एलेक्सिया विदाउट एग्राफिया आपको मिलेगा। एलेक्सिया क्या होता है, यहाँ पर जो पेशेंट है जब आप उसको कोई भी चीज़ वगैरह देंगे ना, तो वो वहाँ पर आपको नजर आएगा इनएबिलिटी टू रीड या फिर रिकॉग्नाइज, तो ये आपका हो जाएगा एलेक्सिया। एलेक्सिया होगा पेशेंट के अंदर लेकिन एग्राफिया नहीं होगा। अब ये एग्राफिया क्या होता है, जब आप ये पेशेंट को कहते हैं ना कोई भी सिंबल्स वगैरह या फिर कोई भी लेटर्स वगैरह लिखो, तो वो उससे नहीं लिखे जा रहे होते। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एलेक्सिया आपको मिलेगा, एग्राफिया आपको नहीं मिलेगा। एलेक्सिया विदाउट एग्राफिया होगा। डोमिनेंट हेमिस्फीयर्स एक्सटेंडिंग टू स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रोसोपैग्नोसिया जो है ये आपको मिल रहा होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर जो है ये आपकी इन्वॉल्व होगी। और यहाँ पर ये प्रोसोपैग्नोसिया क्या है, यहाँ पर जो पेशेंट है ना फेमिलियर फेसेस के साथ उसको वहाँ पे ना ये पता नहीं चल रहा होगा, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेमिलियर फेसेस, ये क्या होता है यहाँ पर ये प्रोसोपैग्नोसिया। अब इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये एलेक्सिया होगा, प्रोसोपैग्नोसिया होगा, लेकिन आपका एग्राफिया पेशेंट के अंदर नहीं होगा। एलेक्सिया विदाउट एग्राफिया जो है ये आपका होगा जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ये डोमिनेंट हेमिस्फीयर की इन्वॉल्वमेंट। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये नॉन डोमिनेंट स्फीयर की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रोसोपैग्नोसिया आपको मिल रहा होगा। इसी के साथ साथ ना आपने इसके अंदर याद रखना है कि ये जो आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है ना, ये आपके जो होते हैं ना ये आपके थैलेमस वगैरह उसको ये सप्लाई दे रही होती है, आल्सो सप्लाई लिटरल थैलेमस। अब इस केस में क्या होगा, जब आपकी ये जो है ना ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर हो जाएगा स्ट्रोक, तो यहाँ पर जो लिटरल थैलेमस है ना उसकी तरफ भी आपकी ये सप्लाई वगैरह नहीं जा रही होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाएगा ये थैलेमिक सिंड्रोम। अब ये थैलेमिक सिंड्रोम में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये मोटर डेफिसिट वगैरह नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये सेंसरी लॉस वगैरह आपको मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये पेशेंट के अंदर ये प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह जो है ना उसके अंदर ये डेफिसिट वगैरह होंगे। अब सिंपल इसमें आपने याद रखना है, यहाँ पर ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ऑक्सीपिटल लोब, और साथ साथ आपने इसके अंदर ना ये थैलेमिक सिंड्रोम जो है ये भी आपने इसके अंदर याद रखना है। तो उसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है यहाँ पर जो आपके होता है ना ये मैक्यूला, मैक्यूला जो है उसको वहाँ पे ये डबल ब्लड सप्लाई आ रही होती है, यहाँ पर ये एमसीए और आपके जो होती है ना ये पीसीए, ये दोनों की दोनों आपके जो मैक्यूला है उसको वहाँ पे सप्लाई कर रही होती हैं। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉन्ट्रालेटरल हेमी एनोपिया मिलेगा, दूसरी साइड से उसको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये मैक्यूला जो होगा ये उसको वहाँ पे बिल्कुल स्पेयर होगा। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।